Hello everyone, myself Dr. Vizita and today we are discussing the structure of the sperm and spermatogenesis. Students, let's discuss the structure of a sperm first. Student, sperm is the haploid male gamete which is produced in the seminiferous tubule of the testis by a process called as spermatogenesis. स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल होता है जो मेल्स में उसकी टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है. स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये स्पर्म फॉर्मेशन होता है. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, ये स्पर्म कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसकी प्रोसेस डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ डायग्राम of sperm. So this sperm is basically divided into three parts. The first part of the sperm is the head, the second part is the middle piece, and the third part is the tail. Now we are going to discuss each part one by one. This head is the oval structure. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि head एक oval structure है. Inside the head there is a nucleus. So student, this one is the nucleus. This nucleus, it carries the genetic material of the sperm. Sperm का जो भी genetic material होता है वो उसके nucleus के अंदर होता है जो oval shape का आपको दिखाई दे रहा है. Now above the nucleus there is a cap shaped structure. You can see this red one, the cap shaped structure is the acrosome. Student, this acrosome, which is a cap shaped structure, it is formed from Golgi body. ये Golgi body से बना हुआ होता है. What is the importance of this acrosome? Inside the acrosome there are multiple enzymes. कौन कौन से enzymes होते हैं? सबसे पहले होता है इसमें hyaluronidase enzyme. Then the second enzyme is the corona digesting enzyme. And the third one is the zonalysin. These are the enzyme which is present in this acrosome. Student, these enzyme help in digesting the different layer of secondary oocyte. Secondary oocyte की अलग अलग layer को digest करने के लिए ये सारे enzymes का use किया जाता है. सेकेंडरी oocyte की जो डिफरेंट लेयर्स है उसको डाइजेस्ट करने के बाद ही स्पर्म का हेड जो रहेगा वो अंदर एंटर कर पाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्रोसोम. नाउ the second part of the sperm is the middle piece. Middle piece is the second part. This middle piece is connected by a very narrow part that is called as neck. नेक एक काफी छोटा सा नैरो पार्ट है जिसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल दोनों दिखाई देता है. तो ये ऊपर का जो रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है स्टूडेंट, ये नेक में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिखाया है दैट इज डिस्टल सेंट्रियोल. स्टूडेंट, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल दोनों नेक वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. नाउ दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इट हेल्प्स इन द स्पिंडल फॉर्मेशन. जब सेल डिवाइड करेगा तो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. What about this distal centriole? Student, इस distal centriole से बहुत सारे axial filament arise होते हैं. You can see in the diagram these are the axial filament. So all these axial filament are arising from the distal centriole. Distal centriole से ये axial filament arise हो रहे हैं and these axial filament it helps in the propulsion of the tail. जो sperm की जो tail होती है उसको propel करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये axial filament का use होता है. Now the next part is the middle piece. ये वाला पार्ट जो है स्टूडेंट्स, दिस इज द मिडल पीस. इस मिडल पीस में 10 to 14 स्पाइरल टर्न ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है. तो एक्सियल फिलामेंट के आसपास 10 से 14 स्पाइरल कॉइल टर्न माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑलरेडी लिखा है मैंने, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो भी टर्न है वो एक्सियल फिलामेंट के आसपास है, आजू बाजू है. द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस माइटोकॉन्ड्रिया इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म फॉर द मूवमेंट. स्पर्म को आगे मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट मिडल पीस. नाउ the last and the third part of the sperm is the
tail. So you can see in the diagram, this is a long cylindrical and the tapering part. काफी लंबा cylindrical shape का है जो end में जाकर pointed हो गया है, तो it is a long cylindrical and the tapering part. Now inside the tail there is a cytoplasm and the axial filament. tail के अंदर cytoplasm और axial filament दोनों present होते हैं. Again axial filament का वही काम होता है, propulsion of the tail. tail को आगे बढ़ने के लिए या sperm को आगे बढ़ने के लिए ये help करता है. Now throughout the sperm the plasma membrane is covered. plasma membrane ने sperm को cover करके रखा है. तो tail का वो वाला part student जहाँ पे plasma membrane की covering नहीं है, that part is called as the end piece. End piece is that part of the tail which is not covered by the plasma membrane, and the part which is covered by the plasma membrane is the principal piece. So student, this is all about the structure of the sperm. Now we are going to discuss the spermatogenesis, that is the process of formation of a sperm in the seminiferous tubule of a testis. So next is spermatogenesis. Now जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखें तो टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन में हमको बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई देंगे. अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई देंगे, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में कॉइल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. हर एक लोब्यूल में अराउंड 1 2 3 कॉइल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आप खींच के अगर बाहर ले लो और उसका जब क्रॉस सेक्शन देखो, दैट इज कॉल्ड एज द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये भी हम प्रीवियस वीडियो में सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ चुके हैं. एक बार आपको फिर से बताने के लिए, तो जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं स्टूडेंट, तो उसमें हमको यहाँ पे कुछ सेल्स नजर आते हैं. दे आर कॉल्ड एज द जर्मिनल सेल्स, या जिनको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी कहा जाता है. और कुछ पिरामिडल शेप के सेल्स दिखाई देते हैं, दैट इज द नर्व सेल, और उसको सस्टेंटिकुलर सेल या फिर सर्टोली सेल्स के नाम से भी जाना जाता है. तो स्टूडेंट ये जो सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है PGC, दैट इज प्राइमोर्डियल जर्म सेल. इन प्राइमोर्डियल जर्म सेल में ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन की प्रोसेस होती है, और उसके बाद स्पर्म बनता है. तो देखते हैं अभी कैसे ये प्रोसेस होगी. सो सबसे पहले germ cell, these are the mother cell which are diploid in nature. student इस germ cell में सबसे पहले होगी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस, मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे और अपने नंबर इंक्रीज करेंगे. तो दिस germ cell, this will multiply by mitotic division, माइटोसिस होगा. स्टूडेंट माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, इसलिए क्रोमोसोम के सेट्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल में माइटोसिस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियम. ओके, दिस स्पर्मेटोगोनियम इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. नाउ इस स्पर्मेटोगोनियम में स्टूडेंट ग्रोथ होगी. ग्रोथ होने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अगेन ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी रहेगा स्टूडेंट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ ही हुई है. तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ कि इट विल बी अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. नाउ स्टूडेंट दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन. मियोसिस करके ये मैच्योर होगा. तो स्टूडेंट दो प्रोसेस होगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सो दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो अ मियोसिस 1. सो दिस वन इज द मियोसिस 1. मैं यहीं पे लिख देती हूँ. स्टूडेंट एज वी ऑल नो दैट मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन. सो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था ये मियोसिस 1 करके कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में.
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बिकॉज मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है तो क्रोमोसोम के सेट्स जो रहेंगे वो हाफ हो जाएंगे, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड था और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस 2 की प्रोसेस होगी स्टूडेंट। मियोसिस 2 की प्रोसेस होने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू अ स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा जो फिर से हैप्लॉइड होगा, बिकॉज मियोसिस 2 की अगर हम बात करें तो मियोसिस 2 एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम के सेट्स जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर हैप्लॉइड है तो स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होगा और ये 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट, अभी भी एक बात आपको जो हमेशा याद रखनी है कि मियोसिस 2 होने के बाद भी स्पर्मेटिड बने हैं स्टूडेंट, अभी भी स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ नहीं बना है। सो अभी हमने जो देखा कि स्पर्मेटिड बन चुके थे। Now what is this spermatid? Student, this spermatid is a non-motile जो मूव नहीं कर पाता and it is a non-functional सेल। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो अभी भी मूव नहीं कर पाता और ये इस पे इतनी फंक्शनल कैपेबिलिटी नहीं है कि ये किसी एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो नाउ स्टूडेंट, देयर इज वन मोर प्रोसेस बाय व्हिच द स्पर्मेटिड इज कन्वर्टेड इनटू अ स्पर्मेटोजोआ। नाउ स्पर्मेटिड विल कन्वर्ट इनटू अ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। So student, the process by which the spermatid is converted into a spermatozoa is called as spermiogenesis. So what is the spermiogenesis? It is the process by which the non-motile and the non-functional spermatid is converting into a functional and the motile gamete. So spermiogenesis is the process by which the non-motile, non-functional spermatid is converted into a motile and the functional cell, that is sperm and the spermatozoa. Now, what exactly happens in this spermiogenesis? Spermiogenesis में ऐसा क्या होता है कि जिससे spermatid spermatozoa में convert हो जाता है? तो student, सबसे पहले there is increase in the length of spermatid. There is increase in length of spermatid की length increase हो जाती है। Then the acrosome is formed from Golgi bodies. गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम बन जाता है स्टूडेंट, जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है अभी हमने देखा। उसके बाद देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल सेंट्रियोल था उसका अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ बोथ सेंट्रियोल स्टूडेंट, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, दोनों का रीअरेंजमेंट हो जाएगा एंड द माइटोकॉन्ड्रिया विल टेक द स्पाइरल टर्न। जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो भी मिडल पीस में स्पाइरल टर्न ले लेंगे। Mitochondria will take spiral turn. तो स्टूडेंट, इतनी ये सारी प्रोसेस होने के बाद स्पर्मेटिड जो रहेगा वो स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। नाउ स्टूडेंट, देयर इज वन मोर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। That is spermiation. Now what is this spermiation? Student, हमने देखा था sectional view of seminiferous tubule, हमने seminiferous tubule का sectional view देखा था। इस sectional view में हमने देखा था these are the mother cells। ये mother cells होती है जिनको हम germinal, epithelial सेल्स बोलते हैं और यहाँ पे ये नर्व सेल्स होते हैं जिनको सर्टोली सेल्स बोलते हैं।
Sertoli cells are the nurse cell which provide nutrition to the spermatozoa. ये nurse cell और Sertoli cells वो cells होते हैं जो spermatozoa को nutrition provide करते हैं. Student, this part, the central part of the seminiferous tubule is called as the lumen of seminiferous tubule. और स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहीं पे हमको बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया दिखाई देंगे. फिर उसके बाद हमको स्पर्मेटोगोनिया के बाद यहीं पे हमको बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड नजर आएंगे. और उसके बाद जो फाइनली स्पर्मेटोजोआ रहेंगे उनका हेड हमको दिखाई देगा कि वो सर्टोली सेल्स में अटैच है. तो सपोज दिस इज द सर्टोली सेल्स, तो हमको बहुत सारे स्पर्म के हेड दिखाई देंगे जो सर्टोली सेल से अटैच है. उसके हेड जो रहेंगे वो सर्टोली सेल्स में फिक्स रहेंगे न्यूट्रिशन को लेने के लिए. एक बार स्पर्म जब मोटाइल बन जाएगा, प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएगा, तब वो ट्राई करेगा कि वो अपने हेड को डिटैच कर ले सर्टोली सेल से और इस ल्यूमेन में आ जाए. और इसी प्रोसेस को स्टूडेंट बोला जाता है स्पर्मिएशन. Spermiation is the process in which the spermatozoa detaches itself from the cytoplasm of the Sertoli cells and enter into the lumen of the seminiferous tubule. This process is called as the spermiation. Spermatozoa Sertoli cells के cytoplasm से अपने head को detach करके seminiferous tubule के lumen में आ जाता है और उसके बाद with different ducts it will enter into the different duct of the male. So student, this process is called as the spermiation. तो student हम already 3 process पढ़ चुके हैं, that is spermatogenesis, spermiogenesis and spermiation. So spermatogenesis हम already पढ़ चुके हैं. Second हमने पढ़ा है spermiogenesis और third process हमने पढ़ी है student spermiation. सो इन तीनों प्रोसेस के बीच के डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बिकॉज एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, एंट्रेंस में भी बहुत बार पूछा गया है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस. स्पर्मियोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ this sperm from a spermatid. स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. स्टूडेंट ये दोनों प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में ही हो रही है. और फाइनली स्पर्मिएशन एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द स्पर्मेटोजोआ डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द सर्टोली सेल एंड एंटर इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सो दिस आर द 3 different processes. This is all about the structure of a sperm and the spermatogenesis. Thank you so much students.